is reproduction. Reproduction is the vital process by which any species maintains its existence over the earth. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म स्पेशली मैमल्स और एग्जाम्पल ले रहे हैं ह्यूमन बींग्स आवरसेल्व्स. तो एक कंसेप्ट मैप देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रिप्रोडक्शन. इन एवरी ऑर्गेनिज्म there is a reproductive system. For production of sperm there is a male reproductive system, and for the production of ovum or egg there is female reproductive system. In the male reproductive system, the primary sex organ is testis, whereas in female reproductive system the primary sex organ is ovary. There are other organs also which help in reproduction. Those organs are called accessory sex organs. Here we are considering only the primary sex organ which is meant for the production of sperms. The testis is composed of numerous seminiferous tubules, and inside the seminiferous tubules sperms are produced which are male gametes. In the ovary, oogenesis occurs, and that leads to the production of egg or ovum inside the ovary. The ovary is discharged and carried to the fallopian tube, whereas the male gamete sperm is also discharged at the time of copulation inside the vaginal structure, from where it moves to the fallopian tube, and at that point both the eggs meet together and fertilization occurs. Male gamete sperm, female gamete ovum दोनों मिलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के फैलोपियन ट्यूब में एट द पॉइंट ऑफ एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, और वहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन रेस्टोर्स द डिप्लॉयड स्टेज टू एन स्टेज दैट इज कॉल्ड जाइगोट. Gamete, the process of production of gametes. The process of production of gamete is called gametogenesis. The gametogenesis occurs in the primary sex organ in both male and female, that is testis and ovary respectively. Gametogenesis का प्रोडक्ट हो गया मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, दोनों मिले जाइगोट बन गया. And the zygote moves to the uterus where it gets implanted. कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस भी कैरी ऑन होते हैं. क्लीवेज होगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और वो ट्रोफोब्लास्ट बनेगा. वो सब इम्प्लांट, वह स्ट्रक्चर इम्प्लांट होता है इन द यूटेराइन वॉल. इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी का टाइम वेरिएबल होता है. इन आवर केस इट इज ऑफ 9 months, और जब 9 month पूरा हो जाता है, एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है, तो देयर इज बर्थ ऑफ द चाइल्ड, एंड दैट प्रोसेस, दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन. बर्थ हुआ, न्यू इंडिविजुअल ग्रो करेगा, एडल्ट बनेगा, अटेन्स द प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा, और फिर ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे. नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट टॉपिक, गैमेटोजेनेसिस को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं. गैमेटोजेनेसिस को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, और गैमेटोजेनेसिस को दोनों केस में देखते हैं. व्हेन द गैमेटोजेनेसिस अकर्स इन मेल in the testis it is called spermatogenesis, and when the gametogenesis occurs in the ovary in case of females it is called oogenesis. Spermatogenesis leads to production of spermatozoa or sperms, whereas oogenesis leads to production of eggs, ovums. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस को देखते हैं कि when spermatogenesis begins, it begins at the time of puberty. But where oogenesis begins, it begins at the embryonic stage of the child before the birth, when the female baby is in its mother's womb.
अपनी माँ के पेट में है, गर्भ में है, उस समय ही एम्ब्रियोनिक ओवरी उसी के अंदर oogenesis बिगिन कर जाता है, बर्थ के बहुत पहले। और स्टेजेस में देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजेस में द फर्स्ट सेल which undergoes meiosis to produce a haploid sperms is called primary spermatocyte. Here it is called primary oocyte. दूसरा डिफरेंस देखते हैं। Primary spermatocytes undergo meiosis 1 to produce 2 secondary spermatocytes which are haploid cells. meiosis 1 हुआ, रिडक्शन डिवीजन, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होता है, तो 2 पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इट मीन्स एक स्पर्मेटोसाइट्स जब मियोसिस कंप्लीट करता है तो 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, and these spermatids undergo differentiation, spermiogenesis, और स्पर्मियोजेनेसिस से 4 स्पर्मेटोजोआ या मोटाइल स्पर्म्स बनते हैं। किंतु इन द केस ऑफ फीमेल्स डिफरेंसेस आर देयर। मियोसिस 1 बिगिन करता है, लेकिन कंप्लीट कब होगा? मियोसिस 1 बिगिन हो गया सिलेक्टेड प्राइमरी oocytes में, बट इट कंप्लीट्स एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, प्रोफेज 1 से आगे नहीं बढ़ा, ठहरा हुआ है। प्रोफेज 1 कंप्लीट होगा एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ओवुलेटरी फेज में मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocytes प्रोड्यूस होते हैं, और यही सेकेंडरी oocytes ओवुलेशन के समय रिलीज होते हैं। फॉलिकुलर स्टेज को देखेंगे तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल व्हेन रप्चर्स ओवा रिलीजेस फ्रॉम द ओवरी। इनमें अप टू सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte ही रहता है। सेकेंडरी oocytes जब टर्शियरी oocyte में कन्वर्ट होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, और जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम में, उस समय सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। ध्यान रखने की बात है कि मियोसिस 2 कंप्लीट्स ओनली व्हेन the sperms enters into the egg, the ovum. एक और डिफरेंस लेते हैं। एट द एंड ऑफ मियोसिस इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 4 स्पर्मेटोजोन्स और 4 sperms are produced, whereas in oogenesis from 1 primary oocyte only 1 egg is produced. The rest 3 are polar bodies which get degenerated. 3 पोलर बॉडी बनेंगे, तीनों डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल एग बनेगा, और एक ओवुलेशन में रिलीज होता है। इस वजह से फीमेल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देने की बात है, और उसके रिस्पेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्शन थोड़ा। स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। Spermatogenesis is the process of formation of sperms from immature germ cells in the seminiferous tubules of testis is called spermatogenesis. कितना सिंपल आसान डेफिनेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस का। जेनेसिस हो रहा है, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, किसका? स्पर्म का। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में होगा। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहाँ पे हैं? टेस्टिकुलर लोक्यूल्स में है। पर लोक्यूल 1 2 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। ये सब आपने स्ट्रक्चर में देखा है। तो थोड़ा सा इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि हाउ डज स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स, व्हाट आर देयर स्टेजेस, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। तो इसको देखिए कहाँ पे हो रहा है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में हो रहा है। इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स
जर्मिनल सेल्स हैं, इमेच्योर जर्म सेल्स हैं। इमेच्योर जर्म सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वॉल पे हैं उनको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, ज़्यादा है तो स्पर्मेटोगोनिया। सिंगुलर गोनियम, प्लूरल गोनिया, एक गोनियम, मेनी गोनिया, स्पर्मेटोगोनियम। क्योंकि फिगर में हमने एक लिया है, स्पर्मेटोगोनियम। दिस इज डिप्लॉयड सेल, 2n सेल है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हमारे केस में, इन आवर केस इट इज 46। पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे बाय माइटोसिस, माइटोसिस होगा, सिंपल डिवीजन होगा और नंबर स्पर्मेटोगोनियम का बढ़ेगा। सारे सेल्स जो नए बनेंगे सभी डिप्लॉयड होंगे। इस फेज को आप मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। आउट ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनिया ऑफ फ्यू, कुछ ग्रो करते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ व्हेन the adolescent achieves the puberty। प्यूबर्टी के आते ही कुछ स्पर्मेटोगोनियम साइज में बड़े होते हैं, ग्रोथ फेज आया, और ये स्पर्मेटोगोनियम कहलाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। दे आर पोटेंट सेल्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। दे हैव टू अंडरगो मियोसिस 1। यह डिप्लॉयड सेल मियोसिस 1 स्टेज में गया। मियोसिस 1 के प्रोडक्ट्स दो बनेंगे, दो हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हुआ और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा और पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दो स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस 1 का प्रोडक्शन रिजल्टेंट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉयड होंगे। पहला रिडक्शन डिवीजन है तो हैप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू 23। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा, कंटिन्यूअस डिवीजन है और इसका रिजल्टेंट स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ऑल स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉयड। यह प्रोसेस चल रहा है। स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लार्जर सेल है, डिवाइड किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स एक और सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया एक लार्जर सेल होता है। इस सेल को हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स आर meant for providing nutrition, meant to nourish the spermatozoa. After this, spermatids बनने के बाद inside seminiferous tubules they have to go, and where they undergoes differentiation, सेल के अननेसेसरी सेल ऑर्गेनेलिस डिसअपियर हो जाते हैं, रिस्ट एक्यूमुलेट होते हैं और डिफरेंट फॉर्म एक्वायर करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट होता है मोटाइल स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। टेल, हेड, नेक, कॉलर स्ट्रक्चर्स इसको बाद में देखेंगे। और ये स्पर्मेटोजोन्स receives nutrition by attaching, by embedding their heads into the Sertoli cell. Sertoli cell में अपने हेड को इम्बेड कर लेंगे और न्यूट्रिशन लेते हैं। तो स्पर्मेटिड्स के स्पर्म्स में कन्वर्ट होने के, डिफ्रेंशिएट होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और आफ्टर सम टाइम फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोजोन्स रिलीज हो जाते हैं और इस रिलीज होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। तो फ्रेंड्स बड़ा सिंपल है, कहीं टेक्निकल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। स्पर्मेटोगोनियम जर्म सेल्स है, इमेच्योर जर्म सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल पे हैं, ये अपना नंबर बढ़ाते हैं, कुछ ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सभी के सभी स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इन सारे स्टेज से गुजरते हैं और लास्ट प्रोडक्ट इनका स्पर्मेटोजोन होता है। स्पर्मेटोजोन्स जब रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। स्टेजेज में हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और लास्ट में हम डिवीजन फेज कहते हैं। डिवीजन फेज में मियोसिस 1, मियोसिस 2, उसके बाद से आता है डिफ्रेंशिएशन फेज
और प्रोडक्ट हमारा सामने है। ये सारा कुछ हमारा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में आ गया, इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, which hormones are involved in spermatogenesis and which hormones help this, तो इसको हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, when a person attains its puberty, the hypothalamus releases gonadotropin releasing hormone जो एक्ट करता है पिट्यूटरी के एंटेरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी। और एंटेरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वन इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, द अदर इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एंड्रोजेंस, and the most important androgen here is testosterone. टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन पे असर एलएच का है बाय मीन्स ऑफ हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच के निर्देशन में एंटेरियर पिट्यूटरी एलएच प्रोड्यूस करवा रहा है और एलएच लेडिक सेल्स के थ्रू टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवा रहा है। टेस्टोस्टेरोन helps in spermatogenesis. It also helps in growth and development of secondary sex organs. जब टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, बढ़ जाता है, जब टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। ये इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को जाता है, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सिक्रीशन को कम करता है, देयर बाई एंटीरियर पिट्यूटरी भी एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन फिर से नॉर्मलाइज होता है। द सेकेंड हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे और सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। वह फैक्टर क्या है? एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन्स टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट भी करता है और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। द सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल इज इनहिबिन। एक ग्लाइकोप्रोटीन है और यह इनहिबिन निगेटिव फीडबैक इंड्यूस करता है एफएसएच को कि इसकी एक्टिविटी को कम की जाए। दूसरा, यह हाइपोथैलेमस पे भी एक्ट करके जीएनआरएच के सिक्रीशन को कम करता है। तो ये है हार्मोनल कंट्रोल, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और पसंद आए होंगे आपको। पहले की तरह आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे और अपने फ्रेंड से भी कहेंगे टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इट would be proved very helpful to you. Thank you very much.